Hello dear student. Let's now start your new chapter materials metal and non-metal. In this chapter we will learn about metals and non-metals. What is the metals and what is the non-metals and their properties also. Okay? Physical properties physical properties of metal and physical property of metals, non-metals and chemical properties of metal and non-metal. Okay, so let's start. You also know that about the matter fact that matter can be broadly classified into two parts, metal and non-metal. Okay dear student, welcome to your dream day school. This is the my profile. Okay, so let's now start your chapter. Okay, what is the metal? What is the metal? You also know that about metal. You also know that about metal. What is the metal? You also know that about like a metal is a hard, luster, a ductile, brittle, malleable, and so many properties of metal. Okay, so let's now start in this chapter, in this lecture about metal. Metals, have you ever given a thought to the majestic skyscraper on your way to your school, or for that matters overbridge and flyover? Have you not noticed? Have you not noticed stack made of bronze statue of? Have you not noticed statue made of bronze or brass in your city museum? आपने जैसा कि देखा होगा, आप घर से यानी कि स्कूल से घर जाते समय आपने बहुत सारी ऐसे मेटल के स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, लाइक या फिर कहीं और आप सबको देर टूर पे जाते हैं या फिर कहीं समर वेकेशन पे जाते हैं तो आपने मेटल मेटल के बहुत सारे फ्लाईओवर ब्रिज और स्टैचू आपने देखा होगा अपने शहर में, लाइक म्यूजियम में आपने देखा होगा कि आपके जो स्टैचू बने होते हैं वो क्या होते हैं, या तो ब्रोंज या फिर ब्रास के बनाए जाते हैं। इस तरीके से आपने मेटल को देखा होगा, ठीक है। यानी कि example like a the tallest structure in the world, like the Dubai Burj Khalifa, the Shanghai Tower skyscraper, the Tokyo Television Tower, Sky Tree, Eiffel Tower, etc. are made of metals, mainly the alloy steel. ये सारे आपने जितने वर्ल्ड के जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी लार्ज स्ट्रक्चर हैं, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर, टॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो हैं, वो सारे के सारे किससे आपके एलॉय स्टील से बने हुए हैं। यानी कि एलॉय स्टील एक तरीके का हमारा मेटल्स है, ठीक है। उसी के बारे में हमको आपको जानना है। दुबई दुबई बुर्ज खलीफा की यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसका फिगर देख सकते हैं, ये आपकी है, ठीक है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर। ओके, सो नेक्स्ट, the development of civilization has realized heavily on the discovery of metal. Metal have played an important essential role in the advancement of human societies over centuries. Okay, यानी आपको ये पता है कि जो हमारे जो हमारा जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, हमारा जो ये सिविलाइजेशन में हमारे ये किस तरीके से हेल्पफुल रहा है मेटल, ठीक है। यानी कि सारा कुछ आप देख रहे हैं, आप छोटी सी सुई से लेकर के यानी बड़े बड़े आपके एरोप्लेन तक जो भी आप देखते हैं, सारे के सारे यानी जितनी भी मशीनरीज होती हैं, ये जितने भी आपकी मशीनरीज होती हैं, आपकी यानी प्लेन, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जो भी आप सारे कुछ देख रहे हैं, ये सारा का सारा रोबोटिक्स जो है, ये सारा का सारा जिसमें क्या यूज़ किया जाता है, मेटल्स यूज किया जाते हैं। ये सब किसके बने होते हैं, आपके मेटल्स के होते हैं। तो यानी मेटल्स का जो है कि हमारे सिविलाइजेशन डेवलपमेंट सिविलाइजेशन हैज रियलाइड हैवली ऑन द डिस्कवरी ऑफ मेटल। मेटल के खोज से हमारे पूरे मेटल के खोज मेटल के मेटल की खोज के बाद हमारे जो है कि लाइफ में बहुत डिजास्टर चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑन द अर्थ आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यू ऑलरेडी नो दैट अबाउट जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। एलिमेंट ऑन अर्थ classify into metals and non-metal. Okay, okay dear student,
metals, a metal from Greek मेटोलियन, मेटल जो वर्ड है आपके किससे, आपके ग्रीक वर्ड के मेटोलन से क्या हुआ बना हुआ है, इज अ सॉलिड मटेरियल विच इज typically hard, shiny, malleable, fusible, and ductile, with a good electricity and thermal conductivity. Example: iron, gold, silver, aluminium, and alloy, such as such as steel. Okay, alloy, steel. You already know that about uh, periodic table. About 91 of the element in the periodic table are metals. The टेबल्स आर मेटल, यानी कि आपके लगभग 118 एलिमेंट्स में से, एलिमेंट्स आपके जो पीरियोडिक टेबल में, उसमें से 91 एलिमेंट क्या केवल क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, द अदर आर नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड, कुछ आपके क्या हैं, मेटलॉइड हैं, और क्या है बाकी आपके नॉन मेटल हैं। सम एलिमेंट्स अपीयर इन बोथ मेटॉलिक एंड नॉन मेटालिक फॉर्म। ठीक है, ओके, लेट्स नाउ नेक्स्ट। So all of you know about metals and non-metals and periodic table. In this lecture, you already know that uh, about metals and नॉन मेटल्स। ओके, कि आपके अर्थ पे मेटल्स और नॉन मेटल क्या होते हैं पहले से आपके क्या हैं, यानी कि आपके अवेलेबल हैं, ये किस तरीके से इनका अक्रेंस आप क्या सारे सारे जो है कि आप इसके बारे में पूरी पूरी प्रॉपर्टीज जो होगी। अब इसके बाद आपका जो लेक्चर होगा वो क्या होगा, आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर, योर नेक्स्ट लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ classification of material like metals and non-metal, and what is the physical and chemical properties of metal and non-metal. ओके, तो आपका आपका होमवर्क का क्या होगा, यहाँ पे आपका जो होमवर्क है ये क्या करना है आपको, कि आपको पीरियोडिक टेबल से, ठीक है, राइट द 25 एलिमेंट्स नेम फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, दोज आर मेटल्स एंड दोज आर मेटल्स एंड दोज आर मेटल्स, एंड राइट 10 non metals, okay, element. Okay, so everyone write the 25 elements name from periodic table and 10 non-metal elements. Okay, each and every student write must and learn also. Okay, and if you possible then you hmm, search from net what is the reactivity series and reactivity series. Okay, so bye, thank you.